السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ثانیہ۔ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے امارات کے نائب صدر بھارت و نیپال محمد سرحان نے کی ملاقات۔ حیدرآباد سے ایئر بس A380 سروسز شروع کرنے پر آمادگی کی ظاہر۔ ریونت ریڈی نے پروازوں کی تعداد میں اضافہ کر کے اپنے قدم مضبوط کرنے پر دیا زور۔ بھو بھارتی ایکٹ کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے ریاست بھر میں اراضیات کے دوبارہ سروے کو دیں ترجیح۔ کھمم سے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی کے حکام کو ہدایت۔ حیدرآباد کے ٹی ورکس میں ہندوستان کا پہلا کیمیکل میکینیکل پالشنگ پیڈ ٹیکنالوجی ہب قائم۔ وزیر ITD سریدھر بابو نے جاپان کی کمپنی کے تعاون سے اس مرکز کا کیا افتتاح۔ زمین اصل دولت نہیں بلکہ بچوں کی اچھی تعلیم اور ان کا روشن مستقبل ہی حقیقی سرمایہ۔ کومرمبی آصف آباد ضلع میں مختلف ترقیاتی پروگراموں میں شرکت کے بعد ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ کا خطاب۔ ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور اتم کمار ریڈی نے کودھاڑ کا کیا دورہ۔ 17 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ایک جدید RTC بس اسٹیشن کا رکھا سنگ بنیاد۔ ریونت ریڈی کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب محض ایک خیالی پلاؤ۔ اگلے انتخابات میں تلنگانہ میں BRS کا دوبارہ اقتدار میں آنا یقینی۔ کانگریس نے تلنگانہ کو خشک سالی کی طرف دھکیل دیا۔ تلنگانہ بھون میں میڈیا سے خطاب میں KTR کا ریونت ریڈی کو چیلنج۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے کرنے پلی پمپ ہاؤس نہ چلانے پر ریونت ریڈی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ کہا یہ قدرتی قحط نہیں بلکہ حکومت کی پیدا کردہ ہے قلت۔ اور شوہر نے بیوی اور 2 بچوں سمیت 6 افراد کو کر دیا قتل۔ ضلع رنگاریڈی کے شاہآباد میں پیش آیا سنگین واقعہ۔ پولیس نے جائے وقوع کا کیا معائنہ، مقدمہ درج کر کے کیا تحقیقات کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے وزیر امارات کے نائب صدر بھارت و نیپال محمد سرحان نے حیدرآباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر امارات نے حیدرآباد سے ایئر بس A380 سروسز شروع کرنے کے امکانات تلاش کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جو ایئر لائن اپنی کارروائیوں کے 25 سال مکمل کرنے کا جشن منا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے امارات کے نائب صدر بھارت و نیپال محمد سرحان کے درمیان ملاقات کے بعد امارات پر زور دیا کہ وہ حیدرآباد میں A380 سروسز متعارف کروا کر اپنی پروازوں کی تعداد بڑھا کر اپنے قدم مضبوط کریں۔ انہوں نے تلنگانہ کے تیزی سے ترقی کرتے ہوا بازی کے ماحولیاتی نظام کو بھی پیش کیا، جس میں ورنگل اور عادل آباد میں زیر تعمیر ہوائی اڈوں کو نمایاں کیا گیا اور ایئر لائن کو ریاست میں اپنی مینٹیننس، مرمت اور اوور ہال MRO کی کارروائی قائم اور وسیع کرنے کی دعوت دی۔ نیز مکمل حکومتی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے امارات کو تلنگانہ کے کھیلوں کے سفر میں شراکت دار بننے کی دعوت دیتے ہوئے گچی باؤلی اسپورٹس یونیورسٹی میں کھلاڑیوں کی تربیت کے پروگراموں کی سرپرستی کرنے کی پیشکش کی، جس پر مثبت جواب دیتے ہوئے محمد سرحان نے ان تجاویز کا خیر مقدم کیا اور حیدرآباد سے A380 آپریشنز تلاش کرنے کے لیے امارات کی آمدگی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی سرپرستی کے اقدامات کے ذریعے کھیلوں کی ترقی میں معاونت پر بھی غور کا تیقن دیا، جو تلنگانہ کی عالمی رابطہ کاری اور ہوابازی کے ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ بھو بھارتی ایکٹ کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے ریاست بھر میں اراضیات کے دوبارہ سروے کو ترجیح دیں۔ کھمم سے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کا مقصد اس قانون کے ذریعے کسانوں کے لیے اراضیات کے مکمل تحفظ کو یقینی بنانا ہے، جو اس نے دھرانی پورٹل کی جگہ لی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ منتخب علاقوں میں تجرباتی ری سروے کے ذریعے اراضیات کے بیشتر تنازعات کامیابی سے حل ہوئے، جس کے بعد تربیت یافتہ سرویئرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر سروے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے حکام کو اندرما مکانات کے لیے مستحقین کے انتخاب کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت دی، جس میں جھونپڑیوں میں رہنے والے خاندانوں کو ترجیح دی جائے۔
ریاستی وزیر برائے سیاحت، ثقافت، آثار قدیمہ و ایکسائز متحدہ ضلع عادل آباد انچارج جوپلی کرشنا راؤ نے کومرمبھیم آصف آباد ضلع کا دورہ کیا۔ ضلع پہنچنے پر ضلع کلکٹر کے ہریتا، ضلع ایس پی نکیتا پنت اور ایڈیشنل کلکٹر یوراج مارمٹ اور دیگر سیاسی قائدین نے ریاستی وزیر کو گلدستہ پیش کر کے پرتپاک استقبال کیا۔ ریاستی وزیر نے کومرمبھیم آصف آباد ضلع کے مختلف جیسے آصف آباد منڈل کی مانی گوڑا اور واکینڈی منڈل کی کوماٹی گوڑا میں 20-20 روپے کی لاگت سے گرام پنچایت عمارتوں کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ کیرامیری منڈل کی دھانورا گاؤں میں تقریباً 10 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ VO عمارت کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ جو کسان پرانی پوڈو زمینوں پر برسوں سے کاشت کر رہے ہیں انہیں کسی قسم کی ہراسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاہم انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ نئی جنگلاتی زمینوں پر قبضہ یا نئی پوڈو اراضی کی صفائی نہ کریں۔ ریاستی وزیر نے یقین دلایا ہے کہ سردہ پور کی کسانوں کے مسئلے پر متعلقہ حکام سے بات کر کے قانونی و عملی امکانات کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر ممکن ہوا تو انہیں اپنی زمینوں پر کاشت جاری رکھنے کے لیے مناسب سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے دیہی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمین اصل دولت نہیں بلکہ بچوں کی اچھی تعلیم اور ان کا روشن مستقبل ہی حقیقی سرمایہ ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے پر خصوصی توجہ دیں۔ اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے وہ جذباتی ہو گئے۔ اس افتتاحی پروگرام میں عادل آباد کے MLC ڈی وٹھل، ضلع کانگریس کمیٹی صدر آترم سوگنا، ڈسٹرکٹ لائبریری چیئرمین کے انل کمار، آصف آباد میونسپل چیئرمین M آکاش، وائس چیئرمین محمد احمد، آصف آباد مارکیٹ کمیٹی چیئر پرسن منگا، سنگل ونڈو چیئرمین علی بنی احمد، آصف آباد اسمبلی انچارج اجمیرہ شیام نائک، سابق MLC پرانم ستیش اور ضلع سطح کے افسران، مختلف محکموں کے عہدیداران، عوامی نمائندے، سماجی و سیاسی تنظیموں کے قائدین، خواتین تنظیموں کے ارکان، کسان اور بڑی تعداد میں دیہی عوام نے شرکت کی۔ تلنگانہ نے اپنی سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کو بڑے پیمانے پر فروغ دیتے ہوئے حیدرآباد کے ٹی ورکس میں ہندوستان کا پہلا کیمیکل میکینیکل پالشنگ پیڈ ٹیکنالوجی ہب قائم کیا ہے۔ وزیر IT سریدھر بابو نے جاپان کو کمپنی توہو کوکی شیشا کوشو لمیٹڈ کے تعاون سے اس مرکز کا افتتاح کیا، جس کا مقصد فیبریکیشن میں استعمال ہونے والے امپورٹڈ CMP پیڈز پر انحصار کم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہب اسٹارٹ اپس اور محققین کو ٹیکنیکی مدد اور تربیت فراہم کرے گا۔ آئندہ سالوں میں ریاست اسٹریٹجک شراکت داری کے ذریعے ان پرزوں پر مقامی سطح پر تیاریوں کے ممکن بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں، جس سے تلنگانہ ایک ممتاز سیمی کنڈکٹر ہب بن جائے گا۔ ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور اتم کمار ریڈی نے کودھاڑ میں 17 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ایک جدید RTC بس اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر پربھاکر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ حکومت حکمت عملی کے تحت اہم علاقوں میں ٹرانسپورٹ کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کر رہی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مہالکشمی اسکیم نے روزانہ لاکھوں خواتین کے لیے مفت سفر کو کامیابی کے ساتھ ممکن بنایا ہے، جس سے ان کے اخراجات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے اور ورک فورس کی فلاح و بہبود کے لیے انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی بسوں کی خریداری اور روٹس کی توسیع کا مقصد TSRTC کو ملک کا سب سے بہترین پبلک ٹرانسپورٹ ادارہ بنانا ہے۔ ریلوے، اطلاعات و نشریات اور الیکٹرانکس و اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی وشنو نے ہفتے کو کہا ہے کہ حیدرآباد مرکز کی پرجوش بلٹ ٹرین نیٹ ورک سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا شہر بن کر ابھرے گا، کیونکہ متعدد ہائی سپیڈ ریل راہداریاں جنوبی ہندوستان میں کنیکٹیویٹی اور اقتصادی ترقی کو یکسر بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ صنعت کاروں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وشنو نے کہا ہے کہ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور سورت اور بیلمورا کے درمیان پہلا سیکشن اگلے سال کام شروع کر دے گا، جبکہ بقیہ حصے مرحلے وار کھولے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان نے 350 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ٹرینوں کو ڈیزائن کرنے، تیار کرنے اور چلانے کے لیے درکار انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی ہے، جس سے ملک عالمی معیار کا ہائی سپیڈ ریل ایکو سسٹم تیار کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ مجوزہ راہداریوں کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا ہے کہ حیدرآباد اور امراوتی کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر تقریباً 70 منٹ، حیدرآباد
और बेंगलुरु के दरमियान तकरीबन 2 घंटे 35 मिनट, हैदराबाद और चेन्नई के दरमियान तकरीबन 3 घंटे, हैदराबाद और पुणे के दरमियान तकरीबन 2 घंटे और हैदराबाद और मुंबई के दरमियान 3 घंटे से भी कम वक्त रह जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस तरह की कनेक्टिविटी बड़े सनअती और टेक्निकी मराकज़ को एक वाहिद इक़्तिसादी खित्ते में ज़म कर देगा, जिससे तिजारत, सरमाकारी और रोज़गार को बड़ा फ़रोग़ हासिल होगा। विष्णु ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बुलेट ट्रेन की 7 नई राहदारियों का तस्वुर पेश किया गया है, जिसमें जनूबी हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा हाई स्पीड रेल लिंक्स मिलने वाले हैं, जिसमें हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद अमरावती, हैदराबाद पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु और बेंगलुरु चेन्नई शामिल है। ये बताते हुए कि पूरा हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम हिंदुस्तान में ही डिज़ाइन और तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुल्क की बढ़ती हुई टेक्निकी सलाहियतों का अक्कास है और तेलंगाना और दीगर जुनूबी रियासतों के लिए इनकलाबी इक़्तिसादी फ़वाइद लाएगा। कोयला व खानकनी के मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव और दीगर रहनुमा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर उन्हें दोबारा इख्तियार में आने का यकीन है तो वह बल्दियाती इंतखाबात मुनहरफ अरकान असम्बली की खाली करदा नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाबात कराएं या फिर असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात का सामना करें। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने दावा किया कि खुद वज़ीर आला की जानिब से कराए गए एक अंदरूनी सर्वे में भी बीआरएस को असम्बली की 78 नशीस्तें जीतने की पेशगोई की गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी का दोबारा इख्तियार में आने का ख्वाब महज एक ख्याली पुलाव है। उन्होंने वज़ीर आला को चैलेंज किया कि अगर ऐसा कोई सर्वे मौजूद नहीं है तो वो भगवान राम के नाम पर हलफ उठाकर इसकी तरदीद कर दें। आपाशी के मामले पर कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि गोदावरी नदी में कन्नेपल्ली के मुकाम पर वाफर मकदार मौजूद होने के बावजूद वज़ीर आला जानबूझकर तेलंगाना को खुश्क साली की तरफ ढकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत और कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के सियासी मुखालिफत की वजह से मौजूदा हुकूमत कन्नेपल्ली पंप हाउस के जरिए दस्तियाब पानी से फ़ायदा उठाने में नाकाम रही है। केटीआर ने दावा किया है कि रोज़ाना 1 टीएमसी 1000 मिलियन मोकब फुट पानी उठाया जा सकता है, जिससे गोदावरी तास के हज़ारों किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड इंजीनियरों ने भी हुकूमत को दस्तियाब पानी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है, जबकि पड़ोसी रियासतें आंध्र प्रदेश पट्टी सीमा प्रोजेक्ट के जरिए कामयाबी के साथ पानी उठा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत कन्नेपल्ली पंप हाउस को मेडीगड्डा बैरेज से जोड़कर आवाम को गुमराह कर रही है और कालेश्वरम मंसूबे के बारे में गलत मालूमात फैला रही है। कांग्रेस हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए केटीआर ने कहा कि हुकूमत आपाशी के शोबे को नज़रअंदाज कर रही है, रियायत-ओ-बंधु स्कीम की रकम की अदायगी में ताख़ीर कर रही है, बीजों की बरवक्त खरीदारी में नाकाम रही हैं और किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर पंप हाउस को फ़ाल करके गोदावरी के पानी को आपाशी के लिए इस्तेमाल ना किया गया तो तेलंगाना भर के किसान एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। ఇప్పుడు మొలవనే మొలవదనుకున్న రాష్ట్రాన్నే మొలిపించిన పార్టీ మాది. మొలవనే మొలవదన్నారు. అట్లాంటి ఒక రాష్ట్రాన్నే మొలిపించిన నాయకుడు కేసీఆర్. ఆయనను ఈ అంగుష్టమాత్రుడు, ఆయనకు హైట్ ఒకటే తక్కువ అనుకున్నా, బుర్ర కూడా తక్కువ అని ఈ మధ్యనే తెలిసింది. అందుకే అనేది మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. మీ రాహుల్ గాంధీ గారు వరుసగా 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా 3 ఎలక్షన్లు ఓడిపోయింది. అయితే ఖతం అయిపోయిందా కాంగ్రెస్? ఉంటుంది కదా, అడుగో బొడుగో అన్నీ ఉంటుంది. అట్లాంటిది ఇంత పవర్ఫుల్ పార్టీ, రాష్ట్రం తెచ్చిన పార్టీ, అంత పవర్ఫుల్ నాయకుడు ఒక్క ఎలక్షన్లో మీ అన్ని అబద్ధపు మాటలు చెప్పి ప్రజలను గోల్మాల్ చేసి దొంగ ఓట్లతో గెలిచినావు నువ్వు. నీకే ఇంతుంటే, తెలంగాణ ప్రజల మీదకి తుపాకీ తీసుకుపోయిన నీకే ఇంతుంటే తెలంగాణ తెచ్చిన మాకెంత ఉండాలని పెట్టుమని. అంత సిపాయి అయితే మొలకెత్తని అని అంటుండు కదా, పెట్టుమని రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్లు పెట్టుమని. ఉప ఎన్నికలు పెడతాడా, జిల్లా పరిషత్ పెడతాడా, లేకపోతే మొత్తం శాసనసభ రద్దు చేసి అసెంబ్లీకి పోతాడా, పొమ్మని చూస్తా. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు, ఆయన సర్వేనే చెప్తున్నది. ఇప్పుడు మిడ్ టర్మ్ అయిపోయింది బ్రదర్, మొత్తం 2.5 ఏళ్ళు అయిపోయింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్లాగో ఎలక్షనే, మిగిలింది 18 నెలలు. ఈ 18 నెలలు ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆయన సర్వే చేయించుకున్నాడు. ఆయన ఒక్కడే చేయలేదు, ఇంకో 3 సర్వేలు, మొత్తం 4 సర్వేలు వచ్చినాయి బయటికి. 4 సర్వేలు గంటా పదంగా చెప్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి సర్వే కూడా స్వయంగా చెప్పింది 78 సీట్లతో బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి రాబోతుందని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పి సర్వే చేయించుకుంటే అందులో కూడా వచ్చింది.
बीआरएस के साबिक वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में मौजूदा ख़ाहात कुदरती नहीं बल्कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि दरियाए गोदावरी में वॉफर पानी मौजूद होने के बावजूद हुकूमत जानबूझकर कन्नेपल्ली पंप हाउस के मोटर्स नहीं चला रही। हरीश राव ने यह बात सिद्दीपेट जिले के नेगनौर मंडल के तेमाईपल्ली गाँव में एक मजहबी तकरीब से खिताब करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने किसानों को हर हाल में आपाशी फराहम करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया था। उनके मुताबिक अगर पंप हाउस के मोटर्स चलाए जाएं तो रंगनायक सागर भर जाएगा। इससे सिद्दीपेट हल्के की तकरीबन 70 से 80 एकड़ आराजी को आपाशी का पानी मिल सकता है। हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला का यह दावा कि कालेश्वरम से 1 एकड़ भी सैराब नहीं हुआ हकीकत के बरक्स है। उन्होंने कहा है कि अगर रेवंत रेड्डी तेमाईपल्ली आकर आवाम से बात करे तो असल सूरत हाल मालूम हो जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि पहले इस गाँव में खवातीन पीने के पानी के लिए खाली बर्तन लेकर इंतजार करती थी। कालेश्वरम का पानी आने के बाद यही इलाका सरसब्ज व शादाब खेतों से भर गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऑयल पाम की काश्त करने वाले किसानों को नरमेटा फैक्ट्री के जरिए बेहतर आमदनी हासिल हो रही है। आखिर में हरीश राव ने दुआ की कि सिद्दीपेट की पेदम्मा देवी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को नेक सोच अता करे। साबिक रुकन असम्बली नारायणखेड़ एम भोपाल रेड्डी ने मुस्तकिल नारायणखेड़ के किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर टी हरीश राव 13 जुलाई को नारायणखेड़ का दौरा करेंगे। वो नारायणखेड़ किंग पैलेस फंक्शन हॉल में 10 बजे दिन बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों को SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी प्रोग्राम, वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट पर नजरसानी, पार्टी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, रुकनियत प्रोग्राम के साथ साथ पार्टी को मजबूत बनाने के बारे में हिदायत देंगे। भोपाल रेड्डी ने पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदों, कारकुनान, बूथ कमेटी मेंबरान और हल्के के तमाम मंडलों के पार्टी कायदीन से मुतालबा किया है कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक म्यूनसिपल चेयरपर्सन रुबीना बेगम, नजीब, साबिक MP TC सैयद मुजम्मिल, BRS टाउन सदर नागेश, BRS कायद MLM गुंडा पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों की मुसलसल निगरानी के सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ये तमाम तरक्याती काम मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में अंजाम दिए जा रहे हैं। जाफर हुसैन महराज ने मंजूर शुदा तरक्याती मनसूबों का मौके पर मुआयना किया। उन्होंने मुतालिका हुकाम को मियारी तामीरात और मुकर्ररा वक्त पर काम करने की हिदायत दी। दौरे के दौरान कोरमगुड़ा में गांधी मुजस्समे के सामने वाक़ CC रोड के 18 लाख रुपए के काम का जायजा लिया गया। इसी तरह संतोष नगर कॉलोनी में 14 लाख और 6 लाख रुपए की लागत से जारी 2 CC रोड मंसूबों का भी मुआयना किया गया। इन तमाम मंसूबों की मजमूई मालियत 38 लाख रुपए बताई गई हैं। ये तरक्याती काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह के बाद तेजी से जारी है। रुकन असम्बली ने काम की रफ्तार और मियार पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मुतालिका अमले को अवामी सहूलत को अव्वलीन तरजीह देने की तलकीन की। मुआयने के मौके पर कोरमगुड़ा के साबिक कॉरपोरेटर शिफात भी मौजूद थे। कोरमगुड़ा और संतोष नगर की मजलिस की प्राइमरी यूनिट के जिम्मेदारान और कारकुनान ने भी शिरकत की। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और मुकामी अवाम भी इस मौके पर मौजूद रहे। शुरका ने तरक्याती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मज़ीद अवामी फलाही मनसूबों की उम्मीद जाहिर की। मजलिस की जानिब से याकुतपुरा असम्बली हल्के में तरक्याती सरगर्मियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी रुकन असम्बली जनगांव की 62वीं सालगिरह तकरीब जनगांव असम्बली हल्के की बेशतर मुकामात पर भारतीय राष्ट्र समिति से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की जानिब से रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने केक काट कर अवाम और कारकुनों में तकसीम किया। जनगांव हल्के में शामिल मदोर मंडल जिले सिद्दीपेट में BRS मंडल कमेटी के ज़ेर एहतमाम रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की सालगिरह तकरीब मनाई गई, जिसमें M संतोष कुमार सदर, सरपंच मदोर D मल्लेशम यसू, नायब सरपंच मोहम्मद शकील अहमद मदनी, BRS कायदीन B नरसिम गौड़, M मल्लेशम के मधुसूदना रेड्डी, मोहम्मद जिलानी सिद्दीक, मोहम्मद फैयाज मोयुद्दीन, मोहम्मद इरफान मोयुद्दीन, पवन कुमार और दूसरों ने सेंट्रल प्राइमरी स्कूल मदोर के तलबा व तालिबात में फल मेवजात भी तकसीम किए। नेज़ स्कूल के अहाते में शजरकारी के जरिए पौधे लगाकर बेहतर ढंग से पौधों की निगहदाश्त और अफजाइश करने का मशवरा दिया। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन वेंकट रमना रेड्डी और दूसरे भी इस तकरीब में मौजूद थे।
निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस कल्चरल टीम के ज़रिए तमाम नंदीपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ TG मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में हफ्ते के रोज़ तलबा के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट के सब इंस्पेक्टर SI के विनय कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पुलिस कल्चरल टीम के अरकान ने ड्रामों और नगमों के ज़रिए तलबा में रोड सेफ्टी, साइबर जराइम से बचाव और मंशियात के नुकसान के बारे में शऊर बेदार किया। इस मौके पर SI के विनय कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा को गांजा समेत हर किस्म की मंशियात से दूर रहना चाहिए। उन्होंने दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को लाजमी तौर पर हेलमेट पहनने और कार में सफ़र करने वालों को सीट बेल्ट इस्तेमाल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नाबालिग अफराद का गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, जबकि तेज़ रफ्तारी, गलत सिमत में गाड़ी चलाना और शराब नोशी के बाद ड्राइविंग करना हादसात का सबब बनता है। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों को भी हिदायत दी है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। SI ने बढ़ते हुए साइबर जराइम के पेश नज़र आवाम और तलबा से मोहतात रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो फौरी तौर पर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। इसी तरह हंगामी हालत में डायल 100 सर्विस से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। उन्होंने देहात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आवाम से पुलिस का ताउन करने और त्योहारों को बाहमी हम आहंगी और भाईचारे के माहौल में मनाने की अपील की है। इस प्रोग्राम में TG मॉडल स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। ज़िले रंगारेड्डी के शाहबाद मंडल के गांव देवला गुड़ा में जुम्मे के निसफ शब के करीब एक हौलनाक वाक़े में एक 28 साला शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शिनाख्त राजकुमार के नाम से हुई है, को उससे कबल 16 मई को एक नाबालिग लड़की और उसकी मां की शिकायत के बाद जिनसी जुराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने लड़की से छेड़छाड़ की है। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि राजकुमार पहले चाकू लेकर मुतासिरा के घर गया और मुबैना तौर पर नाबालिग लड़की, उसकी मां लक्ष्मी और उसकी दादी रुकमा 65 साल पर हमला कर दिया। तीनों जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। मुलजिम इसके बाद अपने घर वापस आए और मुबैना तौर पर अपनी बीवी सरिता 30 साल और 5 साल से कम उम्र की अपनी 2 बेटियों पर हमला कर दिया। वो तीनों भी जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। मुलजिम के वालिदैन ने, जिन्हें इस वाक़े की इत्तला मिली थी, फौरी तौर पर पुलिस को मुत्तला किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस तरुण जोशी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस योगेश गौतम ने जाए वक़्वा का दौरा किया और इब्तिदाई तहक़ीक़ात की निगरानी की। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतक़ल कर दिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.